تاجر دو اسکیم میں رجسٹرڈ ہوں ورنہ جرمانے کے لیے ہو جائیں تیار۔ رجسٹرڈ نہ ہونے والے تاجروں پر 10,000 روپے کا جرمانہ کیا جائے گا۔ ایف بی آر کے مطابق رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 اپریل 2024 مقرر۔ تاجر آسان ٹیکس موبائل ایپ سے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ جی ایف بی آئی کی جانچ کے بعد ملک بھر کے تاجروں کو عندیہ دیا گیا ہے کہ 30 اپریل تک تاجر جو ہے تاجر جو اسکیم سے فائدہ اٹھائیں رجسٹرڈ ہو جائیں، ورنہ ان کے خلاف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 182 کے تحت قانونی کارروائی جرمانہ بھی ہوگا۔ تاجر دو اسکیم میں تمام غیر رجسٹرڈ ہول سیلرز اور ڈیلرز کو بھی رجسٹرڈ ہونا ہے۔ ریٹیلر، فرنیچر اور دیگر شو رومز کو بھی جو ہے شامل ہونا ہے۔ دیگر کاسمیٹک اور اسٹور، کریانہ اور میڈیکل اسٹور کو بھی شامل ہونا ہے۔ تمام ملک بھر میں ہارڈ ویئر اسٹور کی دکانیں ہیں ان کو بھی رجسٹر کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور جس میں یہ بھی سہولت دی گئی سالانہ مجموعی ایڈوانس ٹیکس کی یکمش ادائیگی جو ہے تقریباً 25% کی رعایت ملے گی۔ نان فائلرز کے لیے بھی مقررہ تاریخ سے پہلے 2023 کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے پر ماہانہ ایڈوانس ٹیکس سے 25% کی رعایت ملے گی، اور نان فائلر یکمش سالانہ ایڈوانس ٹیکس کی اگر ادائیگی کرتے ہیں تو ریٹرن فائل کرنے پر 50% رعایت ملے گی۔ ساتھ ہی کہا کہ تاجر دو اسکیم کے تحت رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 اپریل 2024 ہے۔ ایف بی آئی نے رجسٹریشن میں ناکامی کی صورت میں دکاندار اور تاجر کو 10,000 روپے کا جرمانے کے ساتھ رجسٹریشن کیا جائے گا، اور کہا ہے کہ ایک بڑا سیکٹر جو ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کو ریٹیل سیکٹر سے جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ تاجروں کے ایک بار پھر دیا جا رہا ہے کہ 30 اپریل 2024 کے بعد دکانداروں اور تاجروں پر 10,000 روپے کے جرمانے کے ساتھ رجسٹر کیا جائے گا۔ اور ایف بی آئی نے پہلے مرحلے میں ملک کے 6 بڑے شہروں میں دکاندار اور تاجر رجسٹر کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو کراچی ہو گیا ہے، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور کے تاجر جو اسکیم سے اس میں شروع ہو گئی، لیکن اپریل سے کہا گیا کہ 30 اپریل آخری تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ، انڈیکس 68,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 439 پوائنٹس اضافے سے 68,195 کی سطح پر ٹریڈ ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے ایاز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ ہم صبح سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جب سے مارکیٹ نے آغاز لیا، آج مارکیٹ نے 600 سے زائد پوائنٹس جب ہم نے دیکھے تو اس وقت مارکیٹ 68,000 کی اپنی سطح بحال کر چکی تھی۔ اس کے بعد مارکیٹ پہ جب ہم نے اس کے کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک سیلنگ پریشر آ سکتا ہے، اور وہ ریکارڈ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے دوبارہ کم بیک کیا ہے، اور مارکیٹ اس وقت 500 سے زائد پوائنٹس ہے وہ 100 انڈیکس پہ ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مارکیٹ نے دوبارہ 68,000 کی اپنی سطح کو بحال کیا ہے۔ کون سی ایسی خبریں ہیں آج خاص کر جو مارکیٹ کو اتنا سہارا دے رہی ہیں، اس کو جاننے کے لیے شہریار بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار سے جانتے ہیں، شہریار آج پھر کون بڑے زبردست نئے ریکارڈ قائم کرتی ہوئی مارکیٹ نظر آ رہی ہے، کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے، رواں ہفتے جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں باوجود اس کے کہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈنگ والیوم کافی ڈاؤن سائڈ پہ ہوتے ہیں، مارکیٹ مسلسل بڑھ رہی ہے اور آج 68,300 کا لیول بھی کراس کیا۔ اس کی بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا جب گورنمنٹ آف پاکستان نے ایس ایل اے کے تحت آئی ایم ایف کے ساتھ کافی زیادہ افیکٹولی سارے مذاکرات کیے، اور بہت جلد پاکستان کو $1.1 بلین مل جائیں گے۔ ہمارا روپیہ بھی مستحکم ہو رہا ہے، سیمنٹ کی سیل بھی انکریز ہو رہی ہیں، پھر ساتھ ساتھ آئل سیلز امپروو ہو رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں، پھر ساتھ ساتھ سعودی عربیہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عید کے بعد $1 بلین ریکارڈنگ میں کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ پرائیویٹائزیشن کے ایجنڈے کے اوپر ہے۔ پھر فارماسیوٹیکل کے حوالے سے ایک اچھی خبر آ گئی، جس کے بعد فارما کے اسٹاک بہت اچھا پرفارم کیا، آئل اینڈ گیس آلریڈی بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے، بینکس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے ہیں، اچھے پے آؤٹ دے سکتے ہیں۔ یہ سارا مجموعہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹر کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ پھر پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن اگر اس کو ہم کمپیئر کریں فیبرری 8 میں جو الیکشن ہوئے اس کے بعد اب کافی زیادہ مستحکم ہے، جس کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کو ویلکم کریں اور انڈیکس ٹرولی ریفلیکٹ کریں۔ اچھا، والیوم کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پورا اوور آل رمضان کے اندر والیوم بہت کم رہے، آج کتنے شیئرز کا کاروبار آپ کو لگتا ہے؟ اب تک تو ہم نے 25 کروڑ شیئرز کا کاروبار دیکھ لیا، تو لگتا ہے کہ آج 40 کے لگ بھگ کاروبار ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس بڑی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے اسٹاکس کے اندر زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہیں۔ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ پینی اسٹاکس کے اندر کافی زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی تھی اسٹاکس میں، تو والیومس ہو جاتے تھے، لیکن اتنے والیومس ہونا رمضان کے مہینے میں کافی زیادہ خوش آئین ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ملک میں، جو پازیٹیولی ہم آگے بڑھیں گے، ریزلٹس اچھے آئیں گے، اور گورنمنٹ آنے والے بجٹ میں اگر اسٹاک مارکیٹ کو کچھ انسینٹیو دیتی ہے، اگر یہاں سے جتنے ٹیکسز ہیں جو بہت زیادہ لگ رہے ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں، انویسٹرز کو اگر کہیں ریلیف دیتا ہے تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہی ہوگا۔ جتنے چارجز کم لگیں گے گورنمنٹ اتنا زیادہ اپنا ریونیو بڑھا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں والیوم بھی بڑھ سکتا ہے۔
क्या उम्मीद है कि कोई सुपर टैक्स लगने जा रहा है आने वाले बजट के अंदर, कोई ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं? देखिए, गवर्नमेंट के पास एवेन्यूज बहुत ज़्यादा कम है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, रियल एस्टेट को लेकर आना चाहिए, सर्विस सेक्टर के दूसरे रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। एग्रीकल्चर साइड के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि अब ये कहना बेजाना होगा कि जितने सैलरी क्लास थी उसको निचोड़ लिया गवर्नमेंट ने। अब उनमें अब कोई फर्दर अब जगह बची नहीं है कि उनके ऊपर आप फर्दर टैक्स लगाते हैं। तो अगर आपने सोसाइटी के सारे सेगमेंट को टैक्स नेट के अंदर जब तक लेकर नहीं आएंगे तो मुल्क में पायदार ना तरक्की हो सकती है, ना आने वाले बजट में हमने 1400 अरब रुपए से ज़ायद का बजट है, उसके लिए हमने रेवेन्यू कलेक्शन करनी है। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जब तक गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ को बढ़ाएगी नहीं और जो सोसाइटी में जो सेगमेंट टैक्स नेट के अंदर नहीं है उनको लेकर नहीं आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्या लगता है 68,000 का जो फिगर है, जो बेंच मार्क है आज, उसको ये सस्टेन कर जाएगी मार्केट, या ये ड्रॉप हो जाएगा, या अभी सेलिंग प्रेशर की उम्मीद है? देखिए, लॉन्ग वीकेंड आने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जुम्मतुल विदा की कल छुट्टी है, और तो यूजली ऐसा होता है कि सरमायाकार कोशिश करते हैं कि कैरी ना करें फर्दर ज़्यादा स्टॉक्स। लेकिन हमें लग रहा है क्योंकि मार्केट में खासतौर पर ऑयल एंड गैस के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं, तो ऑयल ड्रिवन इंडेक्स है हमारा, तो मार्केट में सस्टेन करेगी 68,000, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर गवर्नमेंट IMF के एजेंडे के ऊपर रहती है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीदें रहती हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो इंडेक्स को आप यहाँ से फर्दर बढ़ता हुआ देखेंगे। शरिया ने जिस तरह तफसीलन हमें तमाम सेक्टर्स के हवाले से, साथ साथ मईशत के हवाले से जो बताया, तो ये वो ऐसी खबरें आ रही हैं जो मार्केट को बहुत अच्छा सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर रही हैं। और मार्केट में जहाँ हम देख रहे हैं 68,000 की जो ये सतह है, आज सुबह लग रहा था कि वो दोबारा बहाल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद दोबारा हमने देखा कि सरमायाकार सरगर्म है, और माहिरीन दूसरे भी यही कहते हुए हमें नजर आए कि अच्छी खबर ये होगी कि मार्केट जब है ये 68,000 की सतह को कायम रखते हुए आज कारोबार का अख्ताम करे। कल क्योंकि कारोबारी हफ्ते का 5वां रोज़ ऐसे होता है, लेकिन आज ही आखिरी दिन है, 4 रोज़ कारोबार हुआ है मार्केट में। अगला कल अलविदा की छुट्टी है, उसके बाद आखिरी वर्किंग डे जो है वो पीर का रोज़ होगा मार्केट के लिए। लगता यही है कि जो आखिरी रोज़ होगा उसमें भी मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन मार्केट ने अब तक जो हम देख रहे हैं 25 करोड़ शेयर्स का तकरीबन कारोबार हो चुका है अब तक, जो कि इस वक्त अगर हम पूरे महीने बात करें तो इसमें काफ़ी सुस्त रवैया देखी गई थी कि वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रहे थे। तो यही वजह थी कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। लेकिन आखिर में जब हम ये देख रहे हैं कि जब अच्छी खबरें आनी शुरू हुई हैं, उसके बाद से जो है मार्केट को एक अच्छा सहारा मिलता हुआ नज़र आया, और मार्केट ने अपनी नई बुलंद तरीन सतह अब तक की, जब तक हम बात कर रहे हैं, मार्केट ने कभी भी 68,000 को सतह को जो है वो अबूर नहीं किया था, और वो कायम करने में कायम जो है वो हुई है। ये वजह बनती है कि जब सरमायाकार का एतमाद बहाल होता हुआ दिखता है, मईशत के इंडिकेटर्स अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, तो वही वजह बनती है कि मार्केट के अंदर जो है वो सरमायाकारी आती है। साथ साथ बैरूनी ममालिक से जहाँ बात की जा रही है, सरमायाकारी जो है ख़ास करके मनी मार्केट के अंदर भी कहा जा रहा है, टी बिल्स के अंदर बैरूनी मुल्क से जो है उनकी भी लोगों की जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने की जो बातें हुई हैं वो देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो है एक एतमाद लोगों को बहाल होता है कि जब बैरूनी मुल्क से भी सरमायाकारी आती है तो जो लोकल इन्वेस्टर होता है वो यही देखता है कि जब बैरूनी मुल्क से सरमाया आ रहा है तो वो यकीनन अपने लोकल सतह के जो सरमायाकार हैं वो इंटरेस्ट शो करते हैं, और जिसकी वजह से मार्केट को एक अच्छे शेयर्स के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट आती है तो वो यकीनन मार्केट को सहारा देती है। जहां हम देखेंगे हुकूमत की जानिब से जो है वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ी बात की जा रही है, ख़ास करके अगर हम बात करें PIA की, तो PIA एक जो है वो मद्देनज़र रहा पूरे हफ्ते तमाम सरमाया। तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब न्यू सब्जी मंडी के ताजरों और शहरियों से लूटमार, मुलजमान ताजरों से 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन ले उड़े। लूटमार के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बाद सुपर हाईवे को दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। 3 घंटे तक जारी रहने वाला एहतजाज पुलिस से मुज़ाकरात के बाद खत्म हो गया। मजीद बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, डकैती के खिलाफ सुपर हाईवे पे एहतजाज का सिलसिला जारी था, जिसमें यहाँ के जो न्यू सब्जी मंडी आने वाले जो ताजिर हैं, जो व्यापार हैं, वो जो है उनके साथ जो है सुबह वारदात हुई थी, और 3 घंटे से ज़्यादा जो है एहतजाज जारी रहा, जिस पर पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए हैं। SDPO सोराब गोड चौधरी सुहेल पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात करने के बाद उनकी यकीन दहानी कराने के बाद जो ये एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। अगर बात की जाए सुपर हाईवे पर 3 थाने लगते हैं, साइड सुपर हाईवे, सोराब गोड और इसी तरीके से सच्चल थाना लगता है। इस वक्त हमारे साथ सच्चल थाने के SHO गुलाम हुसैन कुरैशी साहब मौजूद है। ये बताएगा कि एहतजाज का सिलसिला जारी था, क्या मुज़ाकरात में यकीन दहानी कराई गई है? देखिए, यहाँ हमारी
मंडी से लेके शराब गोट तक पूरे हाईवे पे हमारी पुलिस मौजूद है। लेकिन ये एक ऐसी जगह पे ये बंदूक कबाब के सामने ये जो मेमार मोड़ पे वारदात हुई है, आज सुबह 7 बजे बंदे से 2 लाख रुपए छीने गए, जिस पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनसे मज़ाकरात हुए। हमने उनसे टाइम लिया, इंशाल्लाह इनको भी पकड़ेंगे। कल परसों भी 2 बंदे पुलिस ने जो इनकाउंटर में ज़ख्मी किए हैं और ये भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। हमारी पुलिस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी बदकिस्मती से ये वारदात हुई है। मज़ीद हम इस पर सख्ती करेंगे, मज़ीद हम पुलिस को एक्टिव करेंगे, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा ये। जी बिल्कुल, यकीन दहानी कराइए कि जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर नफरी जो है बढ़ाई जाएगी। हर दफ़ा की तरह यहाँ पर जो है यहाँ सुपर हाईवे का एक मसला रहा है कि सोराब गोट और इसी तरीके से सच्चल थाने की दूध और इसी तरीके से साइड सुपर हाईवे थाने की दूध यहाँ पर लगती हैं। शहरी लुट जाते हैं और हुदूद का तनाज़ा चल रहा होता है। तो अब जो है एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक जो जमाली पुल की तरफ से बंद थे, वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है बहाल करा दी गई है। अगर मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाएं कि सोहराब गोट से हैदराबाद जाने वाले और आने वाले दोनों रास्तों को बहाल करा दिया गया है, ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई है। ताहम हमारी जो शहरियों से बात हुई, जो जिनसे वारदात हुई है, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके पास से 2,40,000 की रकम लूटी गई है। यकीन दहानी कराने के बाद यह एहतजाज खत्म किया गया है। जी, कायदे-ए-अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में दुआया तकारीब का इनेकाद। मेयर कराची कहते हैं दुनिया की सियासी जमहूरी तारीख का अगर मुताला किया जाएगा तो 4 अप्रैल सियातरीन दिन होगा। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुतनाज़े केस में सज़ा देकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से, जो इस वक्त बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी जो है आज मनाई जा रही है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से आज जो है मरकजी जलसा भी मनसूख कर दिया गया है, जो 14 अप्रैल को होगा। मुख्तलिफ अजला में जो है आज दुआया तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। सर, आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया की सियासी जमहूरी तारीख में जब उसका मुताला किया जाएगा तो उसके अंदर 4 अप्रैल शायद स्याह तरीन दिन हो, जब पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को एक ऐसे केस में जो मुतनाज़ा था, एक ऐसे केस में जो कि बदनीयती पर मबनी था, उसके अंदर सज़ा दे के फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसको अब इतने अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उस केस के अंदर इस बात को माना कि भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये इंसाफ का कत्ल था और ये दिन हमें हमारे उसूलों को मजीद मजबूत करता है कि जो अफकार थे भुट्टो साहब के कि किस तरीके से ताकत का सरचश्मा अवाम है और किस तरीके से आपको अवाम की हुकूक की जिद्दोजहद लड़नी है, ये उस फलसफे के साथ तजदीद अहद वफा का दिन है। मैं समझता हूँ 4 अप्रैल की मुनासबत से परवरदिगार से दुआ है कि जिस नज़रिए के तहत भुट्टो साहब ने अपनी जान का नजराना पेश किया, अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया, परवरदिगार हम सबको तौफीक दे कि हम भी उन उसूलों के ऊपर हमेशा कायम रह सकें और अवाम उन्नास की खिदमत के जज्बे से सरशार रहते हुए पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। तारीख की उस सफ़ों पे दुरुस्त बात दर्ज कर दी गई है कि भुट्टो साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जिस शख्स ने आईन पाकिस्तान बनाया, राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट करार दिया आर्टिकल 9 के तहत, अफसोस की बात यह है कि उस वक्त की अदालत ने, उस वक्त के जजेस ने भुट्टो साहब की राइट टू लाइफ के जो हक था उसको मजरू किया। तो दुख और अफसोस हमेशा रहेगा, लेकिन चलें, कम से कम इस बात का एतराफ़ तो किया गया कि भुट्टो साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ था और अब ये उसूल राइज कर लिया जाए कि माजी के तल्ख फैसलों से, गलत फैसलों से हम सबक हासिल करें ताकि मुस्तकबिल में और हाल में इस तरह के गलत फैसले ना हों। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर जो है यकीन रखती है, जबकि शहीद भुट्टो के फलसफे पर जो है हमेशा गामजन रहेंगे। रमजानुल मुबारक में भी गैस का हसूल इम्तहान बन गया। अख्तर कॉलोनी में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों के मुताबिक 4 साल से गैस नायाब है। मजीद बताएंगे फरहान खान।
جی بالکل، گیس بحران جو ہے وہ شہر قائد میں شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اس وقت میں اختر کالونی سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. علاقے کی صورتحال کے حوالے سے بتاؤں تو یہاں پہ علاقے کے اندر گیس گزشتہ 3 سے 4 سال سے جو ہے وہ نایاب ہو کے رہ گئی ہے. کھانے بنانے کا اصول جو ہے وہ شہریوں کے لیے یہاں پہ امتحان بنتا چلا جا رہا ہے. میں کیمرہ مین سجاد اس وقت بھی آپ کو دکھائیں تو میرے پیچھے جو کھانے کی جو تیاری جو بچوں کے لیے ناشتہ بنایا جاتا ہے وہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ گیس سلنڈر کے اوپر تیار کیا جا رہا ہے. گیس نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ یہاں پہ اہل علاقہ جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے. ہم اگر ان سے بات کریں تو آپ کی بات بھی کراتے ہیں. مجھے بتائیے گا علاقے کے اندر کب سے جو ہے وہ گیس جو ہے وہ نہیں آتی ہے, کتنی مشکل ہوتی ہے؟ ہمیں تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں. یہ ہم لوگ کافی مشکل میں پریشانی میں ہیں. یہاں پر گیس بھی نہیں ہے اور پانی بھی آتا تھا لیکن اب 2 سال سے وہ بھی نہیں آ رہا. تب پلیز ہمارے لیے کچھ کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ جب وارڈ لینے کے لیے آتے ہیں تو بھاگتے ہیں, بھائی ووٹ دے دو ووٹ دے دو. تو جب ووٹ لے لیتے ہیں تو بعد میں پتہ نہیں ہوتا کہ غریب انسان روٹی بھی کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا, کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں پوری ہو رہی. اب کرائے کا مکان ہے, کرائے کا مکان کا کرایہ پورا کرے یا پانی پورا کرے یا گیس پورا کرے. بالکل, اہل علاقہ کا جو ہے وہ یہی شکوہ ہے کہ ووٹ لینے وقت تو امیدیں دلائی جاتی ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں لیکن وہ وعدے جو ہے وہ وفا نہیں ہوتے. گیس بحران کی زد کی وجہ سے سلنڈر استعمال کرنے پہ مجبور ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ 300 روپے کا جو ہے وہ سلنڈر بھروانا پڑتا ہے. LPG گیس بھی جو ہے وہ 300 روپے کلو ہو گئی ہے, جس کے باعث جو ہے وہ شہری LPG سلنڈر استعمال کر کے گھریلو امور کا کھانا تیار کرنے پہ مجبور ہے. اولڈ سٹی ایریا کے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کی 36 انچ سیوریج لائن کا معاملہ حل کر لیا گیا. لائن کی تبدیلی کے بعد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے پمپنگ اسٹیشن سے پہلا پمپ چلا دیا. تفصیلات بتائیں گے جنید جاوید. دیکھیں جی, جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کی سیوریج لائن 36 انچ کی جو تھی اس کے پھٹنے کا معاملہ اب حل ہو چکا ہے اور انتظامیہ نے نئی لائن جو ہے وہ نصب کر دی ہے. اس وقت کا اگر بات کریں جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کی تو یہاں پر آپ کو میرے کیمرہ مین دکھائیں گے کہ پانی جمع نظر آ رہا ہے, لیکن اس وقت اب سے 5 منٹ قبل جو ہے یہاں پر پہلا پمپ جو ہے وہ چلایا گیا ہے, کیونکہ لائن جوڑنے کے بعد لائن کو جو ہے وہ سوکھنے کے لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اوپر جو لگا ہوا مٹیریل ہے وہ سوکھ جائے. اب وہ سوکھ چکا ہے اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی انتظامیہ نے جو ہے وہ پہلا پمپ یہاں پر چلا دیا ہے, جس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ آہستہ آہستہ جو پانی ہے وہ اترنا شروع ہو چکا ہے. اس وقت یہاں پر فیضان موجود ہے جو کہ سپروائزر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. فیضان, کیا معاملات ہیں, کتنے پمپ چلائے ہیں اور اب کتنے پمپ یہاں پہ چلیں گے؟ ابھی ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے 70 کا پمپ چلایا ہوا ہے, اب پانی اترنا شروع ہو گئے. وہاں ریزنگ لائن کا ماشاءاللہ رپورٹ اچھا آ گیا, اب چل رہے ہیں. ہمارا دن رات لگے ہوئے تھے, ہمارے ایم ڈی کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں اتنا جو کام کرنے میں ساتھ دیے. جی بالکل, ٹوٹل اگر جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کی بات کریں تو اس 36 انچ کی سیوریج لائن میں 3 پمپ چلا کرتے تھے. اس وقت کیونکہ ابھی نئی لائن جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے تو پہلا پمپ جو ہے وہ چلایا گیا ہے. البتہ شام کے اوقات میں دوسرا اور پھر بعد میں جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد تیسرا پمپ چلایا جائے گا. ایک ساتھ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ زور دیا جائے گا, فلو چھوڑا جائے گا تو اس لائن کے پھٹنے کا خطرہ بھی ہے, لیکن تکنیکی بنیادوں پر جو ہے یہاں پر معاملات کو جو ہے وہ سنبھالا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ کر کے جو ہے علاقے کا فلو جو ہے وہ نالے کی جانب پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی آپ کو بتائیں کہ سٹی 21 کی کاوش رنگ لے آئی. لائنز ایریا میں سیوریج کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا لیکن سڑک اب بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں سیوریج کا نظام اب بہتر ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لائنز ایریا میں سیوریج کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن علاقہ مکین شکوہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دوسری جانب نارتھ ناظم آباد کی اگر بات کی جائے تو پیپلز چرنگی اور اس سے منسلک سڑک چند ماہ قبل تعمیر ہوئی جو بارشوں میں دوبارہ کھودی گئی تھی. کھلے نالے اور کھودی گئی چرنگی شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہے. 1 ماہ گزرنے کے باوجود نالا اور چرنگی تعمیر نہیں ہو سکی. وجوہات کیا ہیں یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے رضوان احمد. جی بالکل, کراچی کے نالوں کی وہ نالے برساتی ہوں یا سیوریج کے, ان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ان کی صفائی کا خیال, ان کی ریہیبلیٹیشن کا خیال انتظامیہ کو عین بارشوں کے دوران ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو لاوارث حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. پیپلز چورنگی سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. اس نالے کی صفائی کی گئی, اس کو برآمد کیا گیا, لیکن اس میں سے نکلنے والی گپ, اس میں سے نکلنے والی غلاظت جو ہے یہیں پر چھوڑ دی گئی ہے اور یہ نالا جو ہے خطرناک حالت میں کھلا ہوا ہے, جس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جان و مال جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے بلکہ اطراف میں جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ شدید پریشان ہیں, ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. ایسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا سر کیا صورتحال ہے؟ سر یہاں پر تو جو بھی یہ نالا کھودا ہے, بڑے بڑے دن میں بھی مچھر ہیں پانی کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں, کاروبار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لوگ جا رہے آ رہے ہیں, گرنے کا ڈر ہے لوگوں کا, بچے جاتے آتے ہیں,
बहुत परेशानी में मुब्तला हैं लोग। कारोबारी तबका यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, उनको क्या परेशानी होती है? सर कारोबार उनका बंद हो गया है नाले की वजह से, तो ये दोबारा आए नहीं है, नाले को सही भी नहीं किया और ऐसे ही कचरा भी छोड़ के चले गए। आए दिन परेशानी होती है, लोग आने जाने में भी तंगी होती है यहाँ पर। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि यहाँ के जो मकामी रिहायशी हैं बल्कि आमदोरफ्त करने वाले, क्योंकि मसरूफ़ तरीन चारा है ये, उनको शदीद परेशानी है, बल्कि इसके साथ साथ खुला हुआ ये नाला जो कि ख़तरनाक भी है और इसमें से निकलने वाली जो गंद और गिलाज़त है उससे मच्छर और दीगर जरासीम जो है वो पनप रहे हैं। यहाँ से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ जो इतराफ़ में कारोबारी तबका है उनका कारोबार ठप होकर रह गया है, शदीद परेशान है। फौरी मुतालबा किया जा रहा है कि इस नाले की गंद को साफ़ किया जाए और इस नाले को पैक किया जाए। जी, सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाली फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और महकमा कोऑपरेटिव के दरमियान इख्तिलाफात तेज़ हो गए हैं। महकमा कोऑपरेटिव FCS के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी को हटाना चाहता है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये सिंध हुकूमत का एक इदारा है जो माहीगीरों के फलाह व बहबूद का काम करता है, लेकिन ये अंदर आता है महकमे कोऑपरेटिव के। तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से इनके मामला चल रहे हैं। फिशरमैन सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है जाहिद इब्राहिम, उसको कुछ अर्सा कबल हटाया गया था, फिर सिंध हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया है, जबकि जिला गर्दी की अदालत ने उसको बहाल कर दिया। लेकिन महकमा कोऑपरेटिव दोबारा सरगर्म है कि जाहिद इब्राहिम को हटाकर कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए। गुज़िश्ता शब इस मसले पे माहीगीरों ने एक एहतजाज किया था, मुजाहरा भी किया है रात में, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है जाहिद इब्राहिम, उनका ये कहना है कि माहीगीर इस वक्त बिल्कुल मज़ाहमत के लिए तैयार हैं और महकमा कोऑपरेटिव का जो रजिस्ट्रार है वो क्योंकि जो आमदनी हो रही है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसको हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहा है। अब देखना ये है कि इसका क्या बनता है। आया एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाता है, नया एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाता है या इसका बोर्ड बनाया जाता है, लेकिन दोनों महकमों के दरमियान मामला चल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, अपडेट कर रहे थे। कराची एयरपोर्ट पर रनवे से टायरों के रबड़ हटाने के लिए रनवे बंद रखने का फैसला। रनवे 1 माह तक मखसूस औकात कार में बंद रहेगा। मज़ीद जानते हैं, सैयद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सैयद अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट रनवे से टायरों की रबड़ हटाने का ये मामला है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट है उसका रनवे है वो 1 माह तक मखसूस औकात में बंद रखने का फैसला है वो किया गया है और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नोटिस है वो जारी किया है। रिटर्न के मुताबिक 4 अप्रैल से 3 मई 2024 तक मुख्तलिफ कारखाने में मरकजी रनवे है वो बंद रहेगा और इस हवाले से एविएशन अथॉरिटी ने सोमवार से जुमे तक बंद रखने की अहकाम जारी करते हुए एक शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। सोमवार के रोज सुबह 9 से 11 बजे तक, जबकि मंगल के रोज सुबह 8 से दोपहर 12:30 तक रनवे को है वो बंद रखा जाएगा। बुध के रोज सुबह 9 से दोपहर 12:20 तक, जबकि जुमेरात के रोज सुबह 7 बजे से 30 मिनट से लेकर सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट का जो मरकजी रनवे है वो बंद रहेगा। जुमे के रोज सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक रनवे को बंद कर वहाँ से रबड़ है वो हटाई जाएगी और रबड़ हटाने की मुहिम के दौरान हफ्ता और इतवार काम है वो नहीं किया जाएगा, जबकि मरकजी रनवे की बंदिश के दौरान जो सेकेंडरी रनवे है उस पर परवाजें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद। आपको बताएं कि सिंध सेक्रेटेरिएट में डिजिटल हाजिरी का निज़ाम ख़राब, बायोमेट्रिक मशीनें ख़राब होने से हाजिरी का निज़ाम गैर फाल हो गया। मज़ीद जानते हैं, आज़ाद नोड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से 2013 में बाज़ाब्ता तौर पर सिंध सेक्रेटेरिएट के तमाम जो दफातर हैं जिसमें दौलत हाउस है, न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग नंबर 6 है और महकमा खजाना का सेक्रेटेरिएट है, इसके अलावा ओल्ड KDA बिल्डिंग नंबर 1 है और 2 है, जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर बायोमेट्रिक डिजिटल निज़ाम हाजिरी का मुतारफ कराया गया था और तमाम मुलाजिमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए इस निज़ाम के तहत मुलाजिमीन अफसरान की हाजिरी लगानी थी। लेकिन ये निज़ाम जैसे मुतारफ कराया गया जिसके बाद ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर इस वक्त खराब हो चुका है, जिसके बाद तमाम मुलाजिमीन या अफसरान है वो इस निज़ाम के तहत अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, जिसके बाद जो है अफसरान का या मुलाजिमीन का दफातर में आमद और जाने जमात के वक्त की कोई औकात मुकर्रर ऑफिशियल तो है, लेकिन उन पर जो अमल दरामद करना बाकी है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध थे उनको और तमाम जो महकमों के सेक्रेटरीज को अहकाम जारी किए थे कि हाजिरी के निज़ाम जो डिजिटल है उसको यकीनी बनाया जाए, लेकिन ताहाल इस वक्त वही ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़राब है और महकमा इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी से इस निज़ाम को बहाल करने के हवाले से किसी किस्म की कोई इक़दाम
नहीं किए गए। इस हवाले से महकमा IT के अफसरान का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट के अहकाम जारी हैं, लेकिन इस निज़ाम को बहाल करने के लिए एक बार फिर से भारी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जिसके बायस महकमा खजाना को रकम अदा करने को तैयार नहीं है, जिसके बायस निज़ाम फाल नहीं हो चुका है। और ठीक है आज़ाद नोड़ियो, तफसीलन अपडेट करते, शुक्रिया। तो आपको बताएं कि ज़रूफ साजी शायद कुछ लोगों के लिए नई बात होगी, लेकिन मिट्टी से ज़रूफ यानी बर्तन बनाना हज़ार साल पुराना फ़न है। ये फ़न का कारहात जो है कदीम तहजीबों के हो या कराची में बसने वाले कुम्हार बरादरी के, फ़न का सफ़र आज भी जारी है। आयमा खान की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ज़ोए से ज़रूफ आपने उर्दू की पहली किताब में पढ़ा ही होगा। उर्दू में ये लफ्ज़ फ़ारसी से आया, जहाँ मिट्टी से बने बर्तनों को ज़रूफ कहा जाता है। ज़रूफ साजी की तारीख़ बहुत पुरानी है। दुनिया में 3 कदीम तहजीबें दजला और फ़रात के किनारे इराक़, दरियाए नील के किनारे मिस्र और दरियाए सिंध के किनारे सिंधी तहजीब है। इन तीनों कदीम तहजीबों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आम नज़र आता है। मिट्टी के बर्तन की तैयारी में सबसे पहला अमल मिट्टी को कुरेदने का होता है। मिट्टी को किस तरह से कुरेदा जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। मिट्टी को धोना और गूंदना और फिर सांचे में ढालने के लिए कुम्हार सबसे पहले तपती धूप में मिट्टी को अपने बेलचे से कुरेदता है। मिट्टी के बर्तन की तैयारी में दूसरा अमल कुरेदी हुई मिट्टी को टैंकी में डाला जाता है। मिट्टी को नरम करने के लिए इसमें पानी की एक मखसूस मिकदार शामिल की जाती है और फिर मरहला आता है मिट्टी को गूंदने का। पैरों से किया जाने वाला ये अमल मिट्टी को मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी नरम ना हो तो इससे बर्तन तो क्या कुछ भी नहीं बन सकता। ये ज़रूफ साजी का भी अहम तरीन मरहला है। मिट्टी के बर्तन की तैयारी में तीसरा अमल मिट्टी को एक छोटी टंकी में डाला जाता है, जहां मिट्टी और पानी को अलग कर लिया जाता है। यहां पे अगर मेरे एक जानिब देखें तो यहां पे मिट्टी जो है वो पानी में बैठ चुकी है, जबकि दूसरी जानिब मिट्टी से पानी अलग करके मिट्टी को जो है वो खुश्क किया जा रहा है। ये वो जगह है जहां कुम्हार चाक के जरिए मिट्टी को मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया में ढालते हैं। कुम्हार, जिसे कूजागर भी कहा जाता है, गूंदी हुई मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है। मिट्टी की एक खास मिकदार को अपने फन का मुजाहरा करते हुए घूमते हुए पहिए के बिल्कुल दरमियान में रखा जाता है और कुम्हार अपने दोनों हाथों की मखसूस गर्दिश से इस बेशक्ल मिट्टी को शक्ल दे देता है। देखते ही देखते ये मिट्टी खूबसूरत बर्तन का रूप धार लेती है। चाक से उतरने के बाद इन बर्तनों को धूप में रखकर सुखाया जाता है। सुखाने का अमल भी 2 हिस्सों में होता है। मिट्टी थोड़ी सूख जाए तो ऐसे बर्तन जर्द मिट्टी वाले पानी में डुबोकर दोबारा सूखने के लिए रख दिए जाते हैं। ये जर्द पानी मिट्टी के बर्तनों को सुर्खी माइल रंगत देता है। ज़रूफ साजी के इस अमल में तकरीबन 20 कीमती दिन लगते हैं। फिर मिट्टी वगैरह बनाई जाती है, फिर इसके बाद कारीगर के पास आती है, फिर इसके बाद सूखने के बाद रखते हैं, सूखने के बाद फिर ढेर लगाते, फिर इसके बाद आग में और भट्टी में जाती है। इसका प्रोसेस तकरीबन एक पीस यानी कि तकरीबन 20 दिन लगाते हैं। 20 दिन के बाद ये पक के निकलता है। मिट्टी के बर्तन को पक्का और मजबूत करने के लिए इसे आग की भट्टी में पकाया जाता है। आग की इस भट्टी को आवी कहते हैं, जहां रुई और कचरे के जरिए आग लगाई जाती है। मिट्टी के कच्चे बर्तनों को भट्टी में पकाना इतना भी आसान नहीं। ये सब बेपनाह महारत और मेहनत तलब काम है। भट्टी में पक जाने के बाद बर्तनों को भट्टी से निकाल कर इन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इन पर मुख्तलिफ नक्शो निगार भी बनाए जाते हैं और यही कदीम सिंधी तहजीब है। आम अफराद में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल गुजरते वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये सनत दम तोड़ती जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी चाक पर कूजागरी के इस फन को जिंदा रखे हैं।
मैं मिट्टी, मेरी ज़ात मिट्टी, मिट्टी मेरा खाना, मिट्टी दा मैं पुतला साइयाँ, मिट्टी विच मिल जाना। मिट्टी की सनत का मुख्तलिफ अंदाज से जारी रहना इस बात की दलील है कि इंसान तरक्की की दौड़ में कितना ही आगे क्यों ना निकल जाए, कुदरत से इसका नाता टूट नहीं सकता और मिट्टी की कदीम तहजीब से इंसान का रिश्ता नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आइमा खान, सिटी 21।